This video is sponsored by OneFootball application that is my go-to stop for all kinds of news related to football। अगर आपको भी ऐसे ही फुटबॉल के बारे में सब कुछ जानना है तो OneFootball से बेहतर कोई भी प्लेस नहीं है because over there you will find all the latest news surrounding your club, also information about the leagues that you follow. All the information is there well addressed on the OneFootball application. They have all the fixtures update with the lineup, the stats and the live commentary as well. Plus, if you want to stay in touch with what is happening in the transfer market, OneFootball is the place to go to. So what are you waiting for? Go down into my description, click on the link and download OneFootball application from over there. There's a long list of world-class players that will be missing out on this year's FIFA World Cup 2022. So I took the liberty of forming an 11 plus 5 more substitute players along with the manager who can challenge for the FIFA World Cup. So hypothetically अगर ये एक टीम हो जाए तो ये क्या वर्ल्ड कप में आगे जा सकती है, क्या जीत सकती है? सो भाई यार एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही फन वीडियो है आज वाला। सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, डू रिमेंबर टू ड्रॉप अ लाइक एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। लेट्स प्रोसीड इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे गोलकीपिंग पोजीशन की तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट गोलकीपर्स है हु आर मिसिंग आउट फ्रॉम द फीफा वर्ल्ड कप। नंबर 1 is Jan Oblak of Slovenia. Yes, we all know that Slovenia couldn't qualify for the FIFA World Cup, but Jan Oblak has been one of the best goalkeepers around. 180 matches played for Atletico Madrid since signing from Benfica. 99 clean sheets है बंदे की. We all know कि one of the best shock stopper है ये बंदा. Good in coming out to receive the ball, to punch the ball और बहुत ही calm on the ball भी है Jan Oblak. So it's a big miss कि Slovenia cannot qualify for the FIFA World Cup and he'll be missing out. The second guy is very famous footballer. Definitely one of the best footballers, goalkeepers लोग कहते हैं इसको Donnarumma. Italy missed out on the FIFA World Cup and yes बहुत लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इटली के काफी सारे प्लेयर्स इस लाइनअप में होने वाले हैं, बट आई ट्राइड माय बेस्ट टू लिमिट द नंबर ऑफ इटालियन प्लेयर्स इन द टीम. होपफुली टुवर्ड्स द वेरी एंड आप लोगों को मेरा लाइनअप अच्छा लगेगा मेरे भाई. एंड अबाउट डोनारूमा, ही इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट. डोनारूमा की वजह से इटली वन द यूरो 2020, दैट इज वेरी वेरी ट्रू, बट देन इटली लॉस्ट अगेंस्ट नॉर्थ मैसेडोनिया जो कि प्लेऑफ में खेली थी एंड he is out of this FIFA World Cup. So इन दोनों गोलकीपर में से आप किसको चूज करोगे? Do let me know in the comments. अगर तुम मुझसे पूछोगे डोनारूमा और जान ओब्लाक में से मैं किसको चूज करने वाला, I am going for जान ओब्लाक. मैंने अपनी टीम में अपने गोलकीपर को जान ओब्लाक सेलेक्ट किया है. ऑल्सो डोनारूमा वुड बी मिसिंग आउट, बट देन रिमेंबर 5 प्लेयर्स हैं जो कि मैं अपने बेंच पे भी डाल सकता हूँ. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, राइट बैक पोजीशन के बारे में बात करते हैं. देखो बहुत क्लियर राइट बैक्स तो फीफा वर्ल्ड कप से मिस तो नहीं हो रहे हैं. वन ऑफ द प्लेयर्स दैट आई कैन रिमेंबर इज फ्लोरेंजी ऑफ इटली, ऑल्सो व्लादिमीर सूफाल ऑफ चेक रिपब्लिक. ये दो प्रॉपर राइट बैक्स हैं जो कि हमारे वर्ल्ड कप से मिसिंग रहेंगे. बट I have gone for a special candidate. Guess who? I have gone with Milan Skriniar of Slovakia. They missed out on the FIFA World Cup 2022 and मुझे लगता है कि Skriniar can be very good playing on that right back position because he has played in a back 3 तो outlet on the right center back position already Milan Skriniar खेलते. We all know कि he is comfortable on the ball, he is comfortable in driving the ball up the pitch. तो मेरे लिए ahead of Soufal, ahead of Florenzi, मैं यहाँ पे Skriniar को यूज करने वाला हूँ. As we all know कि मैं अपनी बेस्ट 11 बना रहा हूँ ऑफ द प्लेयर्स मिसिंग आउट ऑन द फीफा वर्ल्ड कप. तो मैं तो भाई अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाले प्लेयर्स को इस्तेमाल करूंगा. तो स्क्रिनियार कम्स इन ओवर हियर. बंदे के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, ही इज अ बीस्ट व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग, फाइन टैकलर ऑफ द बॉल एंड स्लोवाकिया मिस्ड आउट ऑन द वर्ल्ड कप. सो दिस गाय कम्स इनटू माय 11. लेफ्ट बैक की पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है हमारे पास, बट देन लेट मी थ्रो यू अ नेम, सिमिकास ऑफ ग्रीस. यस, नहीं, डू नॉट वरी, मैंने डेविड अलाबा को ही लेना है यार यहाँ पे. ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड अलाबा हैज़ बीन वेरी गुड, वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से उन्होंने अपना यूरो चैंपियनशिप ऑफ 2020 काफ़ी अच्छा खेला. डेविड अलाबा इज़ अ वेरी गुड फुटबॉलर. ही इज़ नॉट जस्ट अ लेफ्ट बैक फॉर द ऑस्ट्रिया मेरे भाई, ही डज एवरीथिंग. ही स्कोर्स द गोल, ही स्कोर्स द फ्री किक, ही प्लेज इन द मिडफील्ड एज वेल. ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत बड़ा यहाँ पे मिस होगा ऑस्ट्रिया इन दी फीफा वर्ल्ड कप. 1998 के बाद से पहली बार दे वर ट्राइंग टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप. दे कुडंट क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप बट दे डिड गो ऑन टू प्ले द प्ले ऑफ अगेंस्ट गैरेथ बेल्स वेल्स, जहाँ पे 2-1 की लॉस थी एंड वेल्स क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप.
बट ऑस्ट्रिया कुडंट क्वालिफाई। तो मेरे लिए यहाँ पे अलाबा डेफिनेटली होने वाले हैं लेफ्ट बैक पोजीशन पे। नाउ अगर डिफेंडर्स की बात किया जाए तो मेरे भाई आई ट्राइड बट मैं इन दोनों को नहीं हटा पाया। सो मेरे लिए यार सेंटर बैक पोजीशन पे चेलेनी एंड बोनुची आने वाले हैं। यस, इटली के लिए वो फ्यू प्लेयर्स है जो कि मैंने अपनी टीम के लिए चूज किए। चेलेनी एंड बोनुची की पार्टनरशिप को मैं ब्रेक नहीं कर सकता। तो बोथ ऑफ दीज गाइज मिस्ड ऑन द फीफा वर्ल्ड कप। एज यू ऑल नो नॉर्थ मैसेडोनिया के अगेंस्ट जो वो लॉस थी काफी भारी थी। बोनुची डिडंट प्ले दैट गेम बिकॉज ऑफ एन इंजरी, बट स्टिल दीज गाइज अगेन मेरे भाई 37 years old Chiellini, 34 years old Bonucci, they have formed the world's greatest formidable partnership for the Italians and for Juventus as well for as long as we can remember। तो मेरे लिए अगर दो डिफेंडर्स मुझे सेलेक्ट करना है, पेयरिंग अगर है, तो I'm gonna go for Chiellini and Bonucci। कोई और डिफेंडर है, do let me know। I think Tapsoba is also one defender that is missing out from the FIFA World Cup, तो you can even have him over here। let me know और कौन सा डिफेंडर है जिसको मैंने यहाँ पे मिस आउट किया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अगर मिडफील्ड की बात किया जाए तो भाई मिडफील्ड में देयर आर प्लेंटी ऑफ मिडफील्डर्स हु हैव बीन मिसिंग आउट इन द फीफा वर्ल्ड कप। सबसे पहले अगर स्टार्ट करूं मैं तो यहाँ पे आइवरी कोस्ट के फ्रांकेसी इज अ मिस, वराटी जॉर्जिनो ऑफ इटली आर अ मिस, बरेला लोकाटेली अगेन ऑफ इटली आर अ ह्यूज मिस। बट यहाँ पे नाबी केटा ऑफ गिनिया इज ऑल्सो अ बिग मिस। गिनिया कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। एंड चेक रिपब्लिक के थॉमस सूचेक इज ऑल्सो अ बिग मिस इन दैट मिडल ऑफ द पार्क। बट किसको मैं सिलेक्ट करूंगा? जैसे तुमको पता है मेरी फॉर्मेशन 4-3-3 है। सो अगर डीएम पोजीशन मुझे सिलेक्ट करनी है तो आई विल सेलेक्ट वन गाय दैट इज गोइंग टू बी जॉर्जिनो ऑफ इटली मेरे भाई। यस, डेफिनेटली बहुत ही कम प्लेयर्स होने वाले हैं मेरी टीम में इटली के। सो जॉर्जिनो बिकम्स द ओनली थर्ड इटालियन टू कम इनटू माय मिडफील्ड। आप सबको पता है कि भाई जॉर्जिनो इज सो कम ऑन द बॉल, ही इज द टेम्पो सेटर इन द गेम, ऑर्केस्ट्रेटर है यहाँ पे यार ये चेल्सी के लिए भी और इवन फॉर इटली। तो मेरे लिए आई एम गोना गो फॉर जॉर्जिनो। बट देन मूविंग ऑन टू अनदर मिडफील्डर, I would go for Martin Odegaard of Norway। भाई साहब, he was captained at 21 years of age for his national side। They missed out on qualifying from the FIFA World Cup। ग्रुप जी में उन्होंने फिनिश किया था थर्ड बिहाइंड नीदरलैंड एंड टर्की, सो दे कुड नॉट क्वालिफाई। बट देन मार्टिन ओडेगार्ड के बारे में सबको पता है, कैप्टन ऑफ द नॉर्वेजियन साइड, कैप्टन ऑफ आर्सेनल एज वेल, अ बॉर्न लीडर एंड अ वर्चुअस प्लेयर मेरे भाई। बेहतरीन सुंदर फुटबॉलर है, कैन क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ एनीवेयर ऑन द पोजीशन। सो मेरे लिए आई एम गोना गो पिक मार्टिन ओडेगार्ड ahead of all of these lads, ahead of Frank Kessie, ahead of Naby Keita and everyone। But the third guy in my team is going to be the last guy from this Italy national team। I'm going to go for Marco Verratti। I tried मैं यहाँ पे किसी भी प्लेयर को खिला देता, but then I could not miss out on Marco Verratti। मेरा बड़ा मन था कि मैं Marco Verratti को DM खिला के यहाँ पे Frank Kessie या Naby Keita में से किसी एक की मिडफील्ड ले लूँ, but then that would not be the strongest 11। तो yes मेरे भाई लोग, that is the last player that I've selected from the Italian national team। 4 प्लेयर्स हैं यहाँ पे मेरे इटली के, Chiellini, Bonucci, Jorginho and Verratti। And what a midfield pairing that could be, Jorginho, Verratti and Martin Odegaard। भाई साहब, now let's move on to the right wing situation जहाँ पे हमारे पास surprisingly काफी सारे options हैं। We have got Salah who missed out on the FIFA World Cup qualification after losing out to Mane, Senegal। We have got Mahrez as well from Algeria who only lost on away goals। We also have got Federico Chiesa of Italy who did not play because he was injured। And then we have got Cengiz Under of Turkey as well। But इनमें से किसको सिलेक्ट करना है? भाई इट इज नो ब्रेनर यार। यहाँ पे एवरीवन वुड वांट टू हैव साला इन द टीम, सो मैं भी अपने टीम के लिए यहाँ पे राइट विंग पोजीशन पे साला को खिलाना चाहूंगा। नाउ कमिंग ऑन टू द लेफ्ट विंग पोजीशन, यहाँ पे भी एक दो ऑप्शंस है मेरे पास। सबसे पहले मैं ऑप्शंस बताता हूँ आपको। पियरे एमेरिक ओबामेयांग, yes मेरे भाई, गैबॉन के विंगर, I could have used him over here, but then I went with Luis Diaz। Colombia is not playing in this year's FIFA World Cup, only 1 पॉइंट से मिस किया था उन्होंने 5th spot of the CONMEBOL qualifier जहाँ पे पेरू finished 5th on the place and they went on to the intercontinental playoff against Australia। तो बहुत बड़ा मिस है यहाँ पे लुइस डियाज, लिवरपूल स्टारलेट फॉर माई टीम एट द लेफ्ट विंग पोजीशन यार। स्ट्राइकिंग पोजीशन में भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं भाई लोग। सो वी हैव गॉट अर्लिंग हालैंड ऑफ नॉर्वे एज यू ऑल नो। वी हैव आल्सो गॉट ज़्लाटान इब्राहिमोविच ऑफ स्वीडन हु लॉस्ट टू पोलैंड इन द फाइनल राउंड। ही केम आउट ऑफ रिटायरमेंट टू हेल्प दिस टीम क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप, बट स्वीडन यार could not make it to the World Cup। और 2006 लास्ट वर्ल्ड कप था ज़्लाटान इब्राहिमोविच का। सो वी हैव नॉट सीन द 40-year-old legend play in the FIFA World Cup and यहाँ पे that will be a big miss। but उसके अलावा we have got Nigeria के Victor Osimhen, we have got Czech Republic के Patrick Schick as well and we have got Sebastian Haller as well in this team of Ivory
कोस्ट। अब सेबास्टियन हालर का मैंने नाम क्यों लिया, बिकॉज एज यू ऑल नो ही इज अ वेरी गुड फुटबॉलर। इसके पापा जी थे फ्रॉम फ्रांस, इसकी मदर थी फ्रॉम आइवरी कोस्ट। तो नाउ ही प्लेड एट द यूथ लेवल इन द फ्रांस टीम्स, बट देन सीनियर नेशनल टीम के लिए ही सिलेक्टेड टू प्ले फॉर आइवरी कोस्ट। तो ही इज ऑल्सो अ बिग मिस फ्रॉम ओवर हियर। बट देन किसको सेलेक्ट करोगे फॉर योर स्ट्राइकर? आई एम गोना गो फॉर हालैंड भाई, ये भी एक नो ब्रेनर है। हालैंड फॉर मी इज गोइंग टू प्ले इन दिस लाइनअप। तो मेरे लिए यहाँ पे एक 4-3-3 का लाइनअप कंप्लीट होता है। क्या बवाल टीम लग रही है यार। यहाँ पे यानो ब्लैक, स्क्रिनियार, चेल्लेनी, बोनुची, बैक थ्री बना लेंगे। अलाबा लेफ्ट हैंड साइड से पुशअप कर जाएगा, ओडेगार्ड राइट पे शिफ्ट कर सकते हैं, जॉर्जिनो एंड वराटी इन द मिडफील्ड, अप टॉप साला, हालैंड एंड डियाज। भाई 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 क्या ये टीम केपेबल है टू विन दी फीफा वर्ल्ड कप? नाउ हेयर मी आउट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। 5 सब्स्टिट्यूशन है जो कि मैंने यहाँ पे रख रखे हैं अपने लिए। नंबर 1, आई एम गोना गो फॉर रियाद माहरेज मेरे भाई। यस डेफिनेटली अल्जीरिया का स्टारलाइट। आई एम गोना गो फॉर माहरेज इन माई टीम टू बी एज अ बैकअप टू मोहम्मद साला। आई एम गोना गो फॉर अ गोलकीपर। सबसे पहले आई एम गोना गो फॉर डोनारूमा। मैं बेंच पे डेफिनेटली डोनारूमा रखना चाहता हूँ। स्ट्राइक पोजिशन पे आई विल ऑल्सो हैव Sebastian Haller from Ivory Coast. Yes, ahead of Osimhen, ahead of Patrick Schick and ahead of Zlatan. I will have Haller because भाई उसका सीजन तुमको पता है बहुत ज़्यादा बवाल था. Now we'll have 2 more midfielders. मैं यहाँ पे Thomas Soucek of Czech Republic को खिलाना चाहूँगा in my team. Yes, definitely. और I'll also want to have KCA from Ivory Coast. I would not select Naby Keita. मैं KCA को ahead prefer करूँगा than Naby Keita because KCA का सीजन काफ़ी अच्छा था at AC Milan. सो ये 2 मिडफील्डर्स हैं, थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडेड है, बट स्टिल बेंच भी मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। नाउ मैनेजर कौन होगा यार? ऑब्वियसली यार यहाँ पे मैनेजर के लिए भाई मैंचीनी से बेटर कौन होगा यार? इटली का मैनेजर, यू ऑल नो कि ही इज़ अ गुड टैक्टिशियन, काफ़ी अच्छा पोजिशनल प्ले फुटबॉल इटली को खिलाते हैं, बट सैडली ही कुड नॉट टेक दिस इटालियन नेशनल टीम टू द फीफा वर्ल्ड कप। बट आई बिलीव कि अगर ये टीम को वो मैनेज करेंगे, आई थिंक ही इज़ गोना मेक देम प्ले वंडरफुल फुटबॉल। तो क्या भाई, क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? अगर नहीं तो ये कहाँ तक जाएगी, क्या लगता है? लेट्स से कि इफ दैट्स अ नेशन, लेट्स से कि ये TFSD नेशन है, तो ये TFSD नेशन वर्ल्ड कप में कहाँ तक जाएगा विद द गिवन बेंच, द मैनेजर एंड द प्रोग्रेस ऑफ द प्लेयर्स। तो एक बड़ा ही अच्छा फन वीडियो, बड़ा मजा है मुझे वीडियो बना के। सो डू लेट मी नो अगर मैंने कोई प्लेयर को मिस आउट किया, डू लेट मी नो अगर मेरे लाइनअप से आप अग्री करते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो डू लेट मी नो आपको क्या चेंजेस करने लाइनअप में। आई वुड बी ऑल ईयर्स टू लिसन एवरीथिंग फ्रॉम यू गाइस। वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब का एल्गो ब्रेक करेंगे हराम खोर, लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे जो मन में आ रहा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लीव अ लाइक। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।